آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں نون لیگ نے برتری حاصل کر لی ہے، تاہم پیپلز پارٹی نے نتائج پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے نون لیگ پر دھاندلی کے الزامات عائد کر دیے ہیں، جبکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو کارکردگی نہ ہونے کے طعنے دے رہی ہے۔ دوسری طرف آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان گزشتہ روز تصادم اور ہلاکتوں کی خبریں سامنے آئیں، جس کے بعد آج پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کئی ہفتوں تک اس کی منصوبہ بندی کی اور اب انہیں وہی مل گیا ہے جو وہ چاہتے تھے، یعنی بے گناہ کشمیریوں کا خون۔ فسادیوں کے پاس نہ صرف جدید ہتھیار ہیں بلکہ انہیں ایسی تمام اہم جگہوں تک بھی رسائی حاصل ہے جہاں سے وہ سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا واحد مقصد صورتحال کو قابو میں رکھنا اور اسے مزید بگڑنے سے روکنا ہے۔ انتخابات کے دوران مظفر آباد کی جانب مارچ بڑے پیمانے پر بدامنی بھڑکانے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان مشتعل کرنے والے عناصر سے دور رہیں جن کا یہ ثابت شدہ ریکارڈ ہے کہ وہ شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ جب سیکیورٹی اہلکار اپنے دفاع میں کارروائی کریں تو ہر صورت میں فائدہ انہی کو پہنچے۔ جبکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے راولا کوٹ میں متعدد مظاہرین کی ہلاکتوں کا دعویٰ کر دیا ہے، مگر دوسری طرف وزیر اعظم کے مشیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نے آزاد کشمیر کے موجودہ حالات سے متعلق جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ جس طرح سے ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا تھا اور لڑنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ آج تک ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں اور ان تنظیموں کے لوگ وہاں اکٹھے ہیں۔ یہ وہاں پہ وہی لوگ ہیں جن کو جس طرح سے کبھی ہم نے یہ مجاہدین کو ٹرینڈ کیا تھا اور بھیجا تھا کہ جاؤ لڑو، اور اس کے بعد وہ آج تک ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں اور ان تنظیموں کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ ہے اور وہ وہاں پہ کوئی ان کا کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے، کوئی ان کا پبلک ویلفیئر کا معاملہ نہیں ہے، وہ لوگوں کو شیلڈ بنا کے تو وہاں پہ جو ہے یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، اور بالکل ان کے خلاف اگر لا انفورسنگ ایجنسیز نے وہاں پہ ایکشن لیا ہے یا ایکشن لے گی تو اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور قانون نافذ کرنے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان نہ صرف بہت بڑا الزام ہے بلکہ بطور وفاقی وزیر یہ ان کا ایک بہت بڑا دعویٰ بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوال بھی کھڑا کر دیتا ہے کہ کیا جس طریقے سے افغانستان کے لیے تیار کیے گئے مجاہدین پاکستان کے لیے کالعدم ٹی ٹی پی کی صورت میں ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں، ویسے ہی کیا یہ ماضی کے کشمیری مجاہدین اب پاکستان کے اوپر ہی حملہ آور ہو گئے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی آزاد کشمیر کے حالات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سچ اور مفاہمت کے کمیشن کی تجویز دی ہے جو ریاست اور احتجاج کرنے والوں کو تسلیم کرنا پڑے گی۔ جو لوگ زور زبردستی اور چور دروازے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں، گولی چلا کر اور لاشیں گرا کر حکومت بنانا چاہتے ہیں، ان کا پلان ہے کہ آزاد کشمیر کو دباؤ اور وہاں خوف اور مایوسی پھیلاؤ تاکہ لوگوں کی تعداد کم ہو اور دھاندلی کرنے میں آسانی ہو۔ اب وہ کمیشن کو تسلیم کرتے، اپنا کام کرنے دیتے۔ احتجاج کرنے والوں کو ہم کہتے کہ جب تک کمیشن اپنا کام پورا نہ کرے تو اپنا احتجاج بند کرے۔ حکومت کو یہ ماننا چاہیے تھا کہ جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہیں کرتے ہم اپنا کارروائی بند کر دیں گے۔ آج تک کتنے جانیں ہم بچا سکتے تھے؟ یہ کون اور کیوں اتنا انا سے قائم ہے، ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ نہیں، ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ نہ ریاست پاکستان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، نہ احتجاج کرنے والوں کا کوئی موڈ ہے پیچھے ہٹنے کا۔ یہ کسی کی ہار جیت کے سوال نہیں ہے، یہ انسانوں کو جان بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تجویز سچ اور مفاہمت کا کمیشن ریاست پاکستان کو تسلیم کرنا پڑے گا اور احتجاج کرنے والوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بچے وہ صحیح ہوں گے غلط ہوں گے، وہ نوجوان ہیں، سیاسی نعرہ سن کے باہر نکلے ہیں، کسی نے ان کا اپنے حقوق کا دعویٰ کیا ہے تو وہ باہر نکلے ہیں، کوئی تو بورڈ بیٹھے ہوئے گھر پہ تورے 30 دن سے ان کا انٹرنیٹ بند کیا ہے تو اس لیے باہر نکلے ہیں، وہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ آپ ان کو اگر سزا دلوانا بھی چاہتے ہو تو آپ سڑک پہ اسی طریقے سے سزا نہیں دلوا سکتے۔ یہ مسئلہ کوئی سڑک پہ حل نہیں ہوگا۔ خدا نہ خواستہ کسی اور کو آزاد کشمیر حکومت سنبھالنے کا موقع ملا، جو مستقبل نظر آ رہا ہے میرا آزاد کشمیر کے لیے وہ بہت پریشان کن ہے۔ جو زور زبردستی اور چور دروازے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں، گولیاں چلا کے حکومتیں چلانا چاہتے ہیں، لاشیں گرا کے اپنے حکومت بنانا چاہتے ہیں، ان کا یہ پلان ہے کہ دباؤ آزاد کشمیر کو، خوف
फैलाओ आजाद कश्मीर में, मायूसी फैलाए आजाद कश्मीर में, बॉयकॉट करवाए आजाद कश्मीर में, ताकि लोगों का तादाद कम हो। जितने लोगों का तादाद कम होगा उतना आसानी होगा उनको धांधली करने के लिए। जरूर ये हालात देख के पूंछ में और जो तकरीरें हो रहे हैं उस स्टेज से पाकिस्तान के खिलाफ अफसोसनाक शर्मनाक तकरीरें, वो देख के दूसरी तरफ जो हालात है वो देख के लोग मायूस होंगे। जबकि मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब दिया कि पिछले 1 साल से आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के दौर में ही वहाँ के हालात ख़राब हुए, हालात आपसे खुद कंट्रोल नहीं हुए। इलेक्शन की जो स्पीचेस थी आपकी, उसमें आपने जो बात की, आपने सारा ब्लेम फेडरल गवर्नमेंट में डाला। ये कम्प्लीटली कन्वीनियंटली आप भूल गए कि पिछले 1 साल से वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ही के दौर में वहाँ के हालात ख़राब हुए। और उस वक्त तो आप बड़े आराम से फेडरल गवर्नमेंट पे इल्ज़ामात लगा रहे थे, मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे जो हुकूमत में नहीं है। वहाँ से आपके हालात आपसे खुद कंट्रोल नहीं हुए, कारकर्दगी आपके पास है नहीं, और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं। तो बड़े अफसोस की ये बात है। 1 साल से आपकी हुकूमत है आज़ाद जम्मू कश्मीर, आपने ना कोई कारकर्दगी दिखाई और ना ही हालात की जिम्मेदारी ली, बल्कि हर अच्छी चीज़ के लिए आप खुद होते हैं और जो तनकीद होती है वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब उसका रुख मोड़ दिया जाता है। तो अगर आप हुकूमत होते हुए भी रोएंगे और आप अगर इलेक्शन के बाद भी रोएंगे तो लोग आपको रोने के लिए तो वोट नहीं देंगे ना। लोग अपनी तरक्की चाहते हैं, लोग अपने लिए काम चाहते हैं, लोग अपने लिए प्रोजेक्ट्स चाहते हैं, लोग अपनी नस्लों की बेहतरी चाहते हैं। वो रोने वालों को वोट नहीं दिया करते, कारकर्दगी वालों को वोट दिया करते हैं। आपकी कोई कारकर्दगी नहीं, आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं, आपकी कोई गवर्नेंस नहीं, आपका कोई मंशूर नहीं, सवाए ज़ातियात पे बात करने के या लोगों को ताने देने के लिए या लोगों को पर तनकीद करने के लिए आपके पास कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं। गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में इंतखाबात हुए, जिनके लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में थे। मीरपुर डिवीज़न के 13 में से 9 हलकों में नून लीग और 4 हलकों में पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात के पहले मरहले के बाद दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद में पोलिंग 2 अगस्त, जबकि पूंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पहले मरहले पर ही अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए हैं। आज कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में धांधली करवाने के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए गए। आप समझते हो कि तमाम सियासी जमातें बेवकूफ़ हैं और कश्मीर के अवाम अंधे हैं। इन्होंने तारीख में पहली दफा कश्मीर में फेजेस इलेक्शंस करवाए हैं। मेरे पास वीडियो सबूत है। धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है। इंशाल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। चाहते हैं कि पूंछ आजाद कश्मीर ना लगे, मकबूजा कश्मीर लगे, मेरा मीरपुर आजाद कश्मीर की तरह ना लगे, मगर वहां का हालात ऐसे हो कि अगर 30 पोलिंग्स पे कब्जा किया जाए, गोलियां चलाया जाए, कारकुनों को शहीद किया जाए, किसी इंटरनेट पूरा कश्मीर में बंद किया जाए, तो ये आजाद नहीं लगेगा, मकबूजा लगेगा। रियासत मुल्क का मफाद सोच रहे होते तो बाकी पाकिस्तान से पहले आजाद कश्मीर में आजाद, साफ और शफाफ और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन करवा देते। आप समझते हो कि तमाम सियासी जमातें बेवकूफ है? क्या आप समझते हो कि कश्मीर के आवाम अंधे हैं? उनको नहीं पता कि आप इनके साथ क्या करना चाहते हो। ये धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। मरियम नवाज ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सियासी बयानबाजी पर वक्त ज़ाया करने से और रोने धोने से बात नहीं बनती। आज के अवाम बहुत बाशऊर हैं। बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई, जिस किस्म का गुस्सा झाड़ा गया। वहाँ पे जहाँ भी मैं गई वहाँ मैंने एक ही बात सुनी कि हमें वो वाली सहूलियात चाहिए जो पंजाब में है। तो पंजाब की सहूलियात जो हैं वो अपने आप नहीं आ गई। पंजाब की सहूलियात लोगों को देने के लिए 2.5 साल बहुत सर फेंक के मेहनत की गई है और ये सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से, रोने धोने से बात नहीं बनती। आज की आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है। अगर आपने आज वोट लेना है तो आप रो धो नहीं सकते। वोटर्स ने जो फैसला किया है, मुस्लिम लीग नून को जो वोट दिया है, उन्होंने वो ग्रीन बस को वोट दिया है, उन्होंने अपनी छत अपना घर को वोट दिया है, उन्होंने अपना खेत अपना रोज़गार को वोट दिया है, उन्होंने किसान कार्ड को दिया है। पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी
वीडियोस सब मंजर आम पे आई हैं जिसमें बैग्स जो है उनके ऊपर वो वोट स्टैम्प करके बैग्स में डाले जा रहे हैं। कोई सबूत नहीं है इनके पास जिसमें इसमें कहा हो कि कोई धांधली हुई। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे? AJK में जो इलेक्शंस होते हैं उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनती, तो आप अपनी हुकूमत के साथ, अपनी इंतज़ामिया के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपने लोगों के साथ आपने इलेक्शन लड़ाए, तो आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं धांधली का? सोच समझ के बात करें कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज ये भी कहा कि रियासत पाकिस्तान को ये फैसला करना है कि कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज़्यादा अहम है। रियासत का हर फैसला नून लीग के मफाद को तरजीह दे रहा है। हम पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर ज़रदारी का बेटा हूँ, शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो का भांजा हूँ। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते हैं। हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आंखें खोले कि नून लीग के मफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो? ये आजाद कश्मीर है, हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। हम कौमी मफाद में खामोश थे, ये कौमी मफाद को पीछे धकेल के नून लीग के मफाद को तरजीह देना आज से शुरू नहीं हुआ। हमसे यही उम्मीद रखना चाहिए कि हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर ज़रदारी का बेटा हूँ। मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो का भांजा हूँ। मैं सियासत अगर करना चाहता हूँ तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर ना करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एतमाद उठ जाए। इसके जवाब में मरीम नवाज ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में आप जीत गए तो वहाँ धांधली नहीं हुई, लेकिन आज़ाद कश्मीर में आप बुरी तरह हार गए तो वहाँ धांधली हो गई। आपको अपनी परफॉर्मेंस पर मेहनत करनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अभी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। आपके जलसे भी खाली थे, आपके जलसों में आवाम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आपको अपने नैरेटिव पे मेहनत करनी चाहिए थी, आपको अपनी परफॉर्मेंस पे मेहनत करनी चाहिए थी। सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ तकरीबन 17 साल से मुसलसल एक जमात की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और जितनी कंटिन्यूटी वहाँ पर मिली है वो शायद किसी और जमात को ये नहीं मिली। उसके बावजूद सिंध का कोई प्रोजेक्ट बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, कोई मवाद नहीं था। आपने आवाम को अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता सके, आप आवाम को उनके फ्यूचर का रोड मैप नहीं दे सके। जो बातें आपने की वो शायद आवाम को वहाँ पर समझ नहीं आई, या आपको समझ नहीं आया कि वहाँ के आवाम की क्या ज़रूरत है। तो वोटर्स को समझ आ गई थी। और सिंध से जो, कराची से जो आवाज़ें उठती हैं उनके लिए आप कुछ करें, अपनी सड़कों को ठीक करें, अपनी सफाई को ठीक करें, अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करें। आपकी 17 साल की हुकूमत के बावजूद आप एक दफ़ा ये नहीं कह सके कि हम AJK को सिंध बनाएंगे या हम मुजफ्फराबाद को कराची जैसा बनाएंगे, क्योंकि कराची में जो हालात हैं वो दुनिया जानती है। सिंध की कारकर्दगी ऐसी बनाएं कि लोग सिंध की कारकर्दगी देखकर आपको वोट देने का सोचें।